Hi everyone, so welcome to this tutorial. We are discussing questions from 7th chapter linear algebra. In this tutorial what I'm going to do is we are going to see one of the applications of system of linear equations, or I would say how to solve system of linear equations using Gauss elimination method. If you are not sure about this method, please watch the previous tutorial in which we have covered different cases for Gauss elimination method. In this one, I will only show you how to model electric circuits, and we will see using Kirchhoff's current law and voltage law. We will write equations and try to find unknown currents. So in this case, what we want to do, we want to find unknown currents in the circuit, right? So this is the purpose. In order to do this, we will see when we apply Kirchhoff's current law and voltage law, we will get some set of linear equations which can be solved using the method we learned, Gauss elimination method. So पहले मैं आपको जो रिमाइंड करवा देता हूँ Kirchhoff's का current law क्या है. Kirchhoff's current law says for example एक नोड है. नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ज्वाइन करते हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल ये तीन रेजिस्टर्स हैं. In these three resistors, let's suppose in this resistor current is flowing I1, और इसमें I2 है, और इसमें I3 है. तो it says the Kirchhoff's current law says sum of all currents flowing into the node and out of the node is equal to 0, which means इनवर्ड करंट है वो हम यूजली पॉजिटिव लेते हैं. कन्वेंशन ये है. इनवर्ड I2 भी इनवर्ड है और I3 आउटवर्ड है. तो इनको अगर ऐड करें तो ये ज़ीरो आएगा. दिस इज कॉल्ड KCL, Kirchhoff's current law, राइट. सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू 0. ऑलराइट. What about KVL, Kirchhoff's voltage law? So it says something like that. So if I have a circuit like I have a voltage source, then a resistor, another resistor maybe, and that's it. Let's call this V1, R1, R2, and the current which is flowing through the circuit is, let's call this I1. So Kirchhoff's voltage law says sum of all voltage changes is equal to 0. So अब ये आपकी हमारे ऊपर है कि साइन हम कैसे साइन करें. ऐसे पॉजिटिव है नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव करूँगा, राइट. तो ये कन्वेंशन होती है हमारी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर पे फाइंड करना है, एंड लेट्स कॉल दैट मे बी सोर्स को हम V0 कह देते हैं, राइट. और इसको मैं V1 बोलता हूँ, एंड दिस लेट मी कॉल दिस जो I1 करंट फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, लेट्स कॉल दैट V2. तो वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वोल्टेज लॉ ये कहता है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस which mean V0 plus V1 plus V2 should be equal to 0. अब इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो है साइंस. तो वो इस तरह से साइन किए जाते हैं. अब देखो, in this circuit we have two types of elements. One are resistive which consume power, and uh, this is delivering power, which are called non-passive elements. Anyway, so एक बैटरी है और बाकी रेजिस्टर्स हैं. तो हमें करना ये होता है कि अगर हम बैटरी को पॉजिटिव लेंगे उसका वोल्टेज ड्रॉप, तो दूसरे दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा. और अगर इसकी वोल्टेज चेंज नेगेटिव लेंगे तो बाकियों की पॉजिटिव लेनी होगी. बट लेट्स फिक्स दिस कन्वेंशन कि हम बैटरी की जो वोल्टेज चेंज है वो नेगेटिव ले लेते हैं. सो व्हेन आई गोइंग which means when I going minus to plus, usually ये convention नहीं है, but let's say when I going minus to plus, तो voltage change negative है, and when I go plus to minus, तो voltage change
पॉजिटिव है, तो इसमें वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो ये KVL है। सो KVL सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इज इक्वल टू 0, KCL सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने ये यूज़ करना है इस इक्वेशन में। आई विल यूज़ दिस टू फाइंड अननोन करंट्स। तो नोड्स पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद KCL। किस नोड से स्टार्ट करें? मे बी लेट्स स्टार्ट विद Q। तो Q नोड पे देख लेते हैं। एट Q, ये पहली इक्वेशन नोड Q पे देखें तो हमारे पास 3 करंट है, राइट। सो एट नोड Q करंट I1 is leaving, I3 is leaving and करंट I2 is inward। तो I1 नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज़ लीविंग द नोड, और कन्वेंशन हमारी ये नेगेटिव होगा। प्लस I2 इज़ गोइंग टूवर्ड्स नोड Q, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और I3 विच इज़ अगेन लीविंग द नोड Q, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू KCL करंट लॉ सम ऑफ ऑल करंट्स flowing in and out is equal to 0. Okay. What about node P? Second equation. And if you see the equation, हमारे पास 3 unknown currents हैं, तो I need only 3 variables, right? तो मुझे 3 variables चाहिए, sorry 3 equations चाहिए to find these 3 variables. So at node P, basically at this node, let's identify currents. I1 inwards current है, तो ये positive होगा. What about I2? I2 is outgoing current, which means it's a negative current, it's not positive. So I2 is negative at node 2, and I3 is inward, right? So this is going inward to P, which means I3 is again positive at node P. Okay, so I had a mistake in the previous equation. Let me correct it. अभी मुझे नज़र आई है, but let me write it first equations. Have you noticed error in equation 1? वो ये था कि I3 is leaving current, right, at with respect to node Q, तो ये नेगेटिव होना चाहिए. Alright, now it's correct. I1 is leaving, I2 is coming in, I3 is leaving. Yes, so it is correct now. And let's check for node P. I1 is coming in, I3 is coming in, I2 is leaving. Perfect. So now I need a third equation. 3 unknown है. Now I want to apply KVL, Kirchhoff's voltage law, right? Because we are done with the nodes, तो इक्वेशन 3 हमें कैसे मिलेगी? तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट लूप पे या राइट पे, जैसे मर्ज़ी लगा लो. एंड द डायरेक्शन ऑफ एरो सेज कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन लेंगे हम, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट? So this arrow indicates. Now remember sum of all voltage changes is equal to 0, right? अभी मैंने लिखा था, और कन्वेंशन ये मैंने बताई थी कि आपकी चॉइस है. बैटरी को अगर नेगेटिव लेंगे बाकी पॉजिटिव आएगा, बैटरी को पॉजिटिव ली तो बाकी नेगेटिव होंगी. तो अब हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं वोल्टेज चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं. तो एक तो वोल्टेज चेंज यहाँ पे आ रही है, राइट, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है I2 के. लेट मी यूज़ ग्रीन कलर फॉर I1, राइट. तो इसको V0 कह देते हैं, बैटरी के वोल्टेज को, जो कि 80 वोल्ट है, V0. तो KVL क्या बोलता है इस मैश के अंदर, इन दिस मैश विच इज़ लेफ्ट. मैश इज़ लाइक अ क्लोज लूप. मैश का मतलब ये है, इट सेज V0 माइनस V0 बिकॉज हम बैटरी को नेगेटिव ले रहे हैं. दूसरे प्लस आएंगे
इसको मैं V1 कह देता हूँ। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेट्स कॉल दिस V1, ओके, प्लस और वोल्टेज ड्रॉप इस मैश में किसके अराउंड हो रहा है, एंड इफ़ यू नोटिस यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एंड लेट्स कॉल दैट वोल्टेज ड्रॉप V2 इज इक्वल टू 0। बट मुझे जो चाहिए वो करंट्स चाहिए। नाउ आई कैन यूज़ ओम्स लॉ, राइट, V इज इक्वल टू IR। तो उससे मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो बैटरी का जो सोर्स है वो तो गिवन है 80 वोल्ट, माइनस 80 प्लस V1 क्या होगा, V1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है I1, और उसकी जो रजिस्टर की वैल्यू है 20, सो दिस विल बी V1, राइट। 20 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 20 I1 है, सो V1 शुड बी इक्वल टू 20 I1। अच्छा, V2 वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, V2 वोल्टेज ड्रॉप ये 10 ओम रजिस्टर के अगेंस्ट हो रहा है, राइट, और इसमें करंट I2 पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I2 IR, राइट, I2 टाइम्स 10, तो 10 टाइम्स I2। सो आई हैव ऑल थ्री इक्वेशंस। सो इसको -80 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन हियर। 20 I1, मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, प्लस 10 I2 is equal to 80. Now I have three equations and three unknown which I can solve using Gauss elimination method, right? तो अब आप इस पर Gauss elimination method लगाओ और सॉल्व कर लो। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है फॉर प्रैक्टिस, यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। We have again three unknowns. Can you try to pause the video and try to write equations by yourself? Okay, so let's apply KCL first because these are easier to apply. तो मैं इसको नोड 1 कहता हूँ, इसको, राइट, नोड 1। तो लेट्स सी नोड 1 में क्या हो रहा है। Oh, okay, it's more easier to maybe do nodal analysis here first. Let's call this A1, right? So इस 1 पे if you see at this one node I2 is coming in, I3 is coming in, I1 is leaving. So I1 is leaving, so I1 is negative, I2 is coming in, I1 नेगेटिव होगा, I2 I3 पॉजिटिव होंगे, I2 पॉजिटिव होगा, and then I3 भी पॉजिटिव होना चाहिए, right, because it's also coming in. So first equation. Now in order to get the second equation we can use KVL, voltage law, right? तो आप इस राइट लूप को कंसिडर कर लो, राइट मैश को। तो राइट मैश को कंसिडर करें तो व्हाट कैन वी राइट, वंस अगेन कितने वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं वो आप चेक कर लो। एक तो ये सोर्स का है, राइट, सोर्स का, एंड देन वन वोल्टेज ड्रॉप इज हियर, यहाँ से I2 पास कर रहा है, तो लेट मी यूज द कलर, एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है, एंड देन I3 इज पासिंग फ्रॉम हियर, तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। तो KVL ये कहता है अगर मैं बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव लेता हूँ -24, तो बाकी पॉजिटिव लूँगा, पॉजिटिव I2, इस रजिस्टर में से I2 गुजर रहा है, तो 12 टाइम I2 प्लस
यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा करंट पास कर रहा है, I3 पास कर रहा है, तो 8 टाइम्स I3 इज इक्वल टू 0। वंस अगेन -24 आप इधर ले आओ, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन, मैं ऐसे करता हूँ -24 इधर लिख देता हूँ, वो प्लस हो जाएगा 24 and let's select it and move it here. Okay, and the last equation we can write is using left mesh. So left में there are more than one voltage changes, right? Once again it's up to you, इसमें 4 voltage drops हो रहे हैं, माइन ये 2 batteries हैं and there are 2 resistors, right? And from this resistor the current is passing I1, तो वहाँ पे यहाँ पे I1 पास कर रहा है और यहाँ से I2 कर रहा है, तो I would write, पहले बैटरीज की लिख लेते हैं, -24 and -12 -36, ठीक है। और फिर I1 यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, I1 पास कर रहा है, तो 4 टाइम्स I1 4 टाइम्स I1 प्लस इसमें से जो पास कर रहा है I2 कर रहा है, तो I2 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टाइम and the current is passing I2, right, is equal to 0। once again 36 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, तो मैं यहाँ से रेज करता हूँ, यहाँ पे 36 लिख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। नाउ आई हैव 3 equations and 3 unknowns. Of course, using Gauss elimination method we can solve this. And finally, for practice, can you write the equations and try to solve it? Okay, with this let's end this tutorial.